শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। কৃষ্ণ ধন্যবাদ নাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 225 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.225 অনওয়ার্ডস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই রসের সদন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই রসের সদন, অশেষ বিশেষে কইল রস আস্বাদন, অশেষ বিশেষে কইল রস আস্বাদন। সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম, সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম, चैतन्य दासे जाने সেই সব মর্ম। आपको याद है ये चीज आगे आया था कि भगवान को रस आस्वादन करने का इच्छा हुआ, प्लानिंग किया कि अभी हम आएंगे चैतन्य महाप्रभु के लिए, और उसी समय कलयुग भी एंट्री ले रहा था। मैंने 28वां मनवंतर का चतुर्युग चल रहा था, तो उसमें तो भगवान अवतरण होते हैं। क्योंकि 28वां मनवंतर का चतुर्युग में जो द्वापर है उसमें कृष्ण आता है, और उसी का कली में चैतन्य महाप्रभु आता है। हाँ या ना? करेक्ट? तो दोनों कोइंसिडेंस उनका मन का इच्छा था और कलियुग भी एंट्री ले रहा था। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত রসের আধার, অন্তহীন ভাবে তিনি রসমাধুর্য আস্বাদন করেছেন। এভাবে তিনি কলিযুগের যুগ ধর্ম প্রবর্তন করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা তার মর্ম জানেন। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ব্রজ গোপিকাদের প্রেমের পরম ভোক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করার জন্য তিনি স্বয়ং ব্রজ গোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেছিলেন। সেই ভাব নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই যুগের যুগ ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তরাই কেবল এই অপ্রাকৃত রহস্যের মর্ম জানেন। यस अच्युत करुणेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सारे बोले प्रभु कि चतुर्युग ये जो आता है, सतयुग कलियुग, कलियुग के यानी कलियुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु हर एक बारी आते हैं। हर एक कलियुग में नहीं। हाँ, 28वां मनन, ये 7वां मनु के 28वां चतुर्युग का जो द्वापर है उसमें कृष्ण आते हैं, उसी का कली में महाप्रभु आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मा का एक दिन में 7वां जो मनु है, टोटल 14 मनु था, लेकिन 7वां जो मनु है उसका जो 28वां चतुर्युग है। हाँ, तो जैसे और अवतारों में भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग युगों में, तो ये चैतन्य महाप्रभु भी इसमें आते हैं हर एक बार। हम यही पूछना चाहते हैं। हर एक बार तो नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, हर एक बार नहीं। मैंने बार बार जब जब ये युग आता है तब की बात। जब 7वां मनु आता है उसका 28वां चतुर्युग का कलयुग में महाप्रभु आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস, অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস, গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস, গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস, আর যত চৈতন্যের কৃষ্ণের ভক্তগণ, আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ, ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ, ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ। অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর মুরারি গুপ্ত হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আর যত ভক্তগণ রয়েছে, ভক্তি ভরে আমি তাদের শ্রী চরণ কমল আমার মস্তকে ধারণ করি। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাকার আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা যদি যথার্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতে চাই, তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়। ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস, ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস, মূল শ্লোকের অর্থ শুনো করিয়ে প্রকাশ,
মূল শ্লোকের অর্থ শোনো করিয়ে প্রকাশ। আমি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস দিয়েছি, কিন্তু আমি মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করছি, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন। अच्छा, षष्ठ श्लोक भूल गया क्या? फिर से एक बार घूमिए तो घूमते देखिए तो पहला चैप्टर का 6 नंबर श्लोक जल्दी जल्दी खोलिए। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 6। बबीता माता जी आप जहां वैसे रहिए, स्क्रीन शेयर हटाइए मत। बाकी जिनका किताब है घर पे फर्स्ट 1.6 में जाइए। ज्योति में सीता माता जी। प्रभु अभी ये जो श्लोक बोले इसका डिवोटीज का नाम, इसका क्या कनेक्शन आया प्रभु अचानक डिवोटीज का नाम का? कविराज कृष्ण गोस्वामी, कविराज क्यों ऐसे प्रे कर रहे हैं सबको अभी अचानक बीच में, ये माधुर्य रस के बीच में? यहाँ लिखा है 226 का अनुवाद पढ़िए। Thus he initiated the dharma for the age of Kali. The devotees of Lord Chaitanya knows all these truth. हाँ, सेकंड पार्ट का लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ कली भी क्यों आया 26 में? हाँ, ये तो बोल रहा हूँ। ये 226 में बोला है कि the devotees of Chaitanya know all that, तो उन सब डिवोटीज को प्रणाम। ठीक है, और फर्स्ट लाइन क्यों आया फिर इनिशिएटेड द धर्मा फॉर द एज ऑफ कली 26 वाला? हाँ, क्योंकि অন্তহীন उसका उसके 225 देखिए। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত রসের আধার, অন্তহীন ভাবে তিনি রসমাধুর্য আস্বাদন করেছেন। এইভাবেই তিনি কলিযুগে যুগ ধর্ম प्रवर्तन করেছেন। तो क्योंकि आगे आया था ये बात कि he was planning to do all that, ये what are the 3 internal reasons, और उसी समय कलयुग भी आ रहा था, ये आया था आगे। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। अभी देखिए, मतलब उनको रस भी टेस्ट करना था और कलयुग भी आ रहा था। हाँ, सो महाप्रभु बन कर आते, क्योंकि रस का बात आया इसलिए कलयुग भी आ गया बात 26। ओके प्रभु। तो अभी देखिए ये 6 नंबर श्लोक में क्या था? 6 नंबर श्लोक में था कि महाप्रभु का इंटरनल रीजन, क्यों महाप्रभु अवतरण हुए। ओके, देखिए इसको। श्री राधाय प्रणम महिमा कीदृशो बाणयोइव साध्यो जेनाद्भुतो मधुरिमा कीदृशो वामदीय शैखश्चांक्षा मदनुभवत कीदृशं वेति लोभ उद्भावाढ्य क्षमजनी शचिगर्भे सिंधुई हरिंदु। अनुवाद, ये 6 नंबर श्लोक है, फिर से वही आया। अभी देखिए 230। तो क्या बोल रहा है कविराज गोस्वामी 229 में? আমি 6 নম্বর শ্লোকে আভাস দিয়া है, আভাস করে थोड़ा थोड़ा হিন্ট দিয়া है। এখন আমি মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করছি, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন। অনুবাদ, শ্রী রাধার প্রেমের মহিমা কি রকম? ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখী বা কি রকম, এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ रूप चंद्र शची गर्भ सिंधु आविर्भूत हुएছেন। हरि हरि बोल। अभी हमको बताइए, तीनों कारण समझ में आया? तीनों में अंतर समझ में आया? पहला रीजन कि श्रीमती राधा रानी जो प्रेम आस्वादन करता है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से कोटि कोटि गुण है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान का जो माधुर्य अमृत है वो भगवान खुद आस्वादन करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 3, भगवान का जो माधुर्य अमृत है वो श्रीमती राधा रानी आस्वादन करता है, तुमको कैसा लगता है? वो भी चखना है। ये 3 कारण के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु रूप में इंटरनली 3 कारण आविर्भूत हुआ है। तीनों में समझ में आया? तीनों पहली बार हमको एक्चुअली तीनों अच्छा से समझ में आया, लेकिन हमको हमेशा कंफ्यूज हो, तीनों एक जैसा लगता था, लेकिन आज हमको तीनों अलग अलग लग रहा है। मैं फिर से ये अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हिंदी में कोई पढ़िए। पढ़ रही हूँ। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों
जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके एक बार प्रेम एक की सेकंड, मधुर एवं के आगे तक पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन का तो कैसा है, 1 नंबर पॉइंट। नंबर 2, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के फिर से स्लो, बहुत जल्दी हो गया। साउंड भी थोड़ा और कोई पढ़िए, विनीता माता जी पढ़िए अनुवाद। मैं प्रभु इसमें तो दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। घर में बुक नहीं है क्या चैतन्य नहीं चेतना? प्रभु, मैं पढ़ूं? श्रीमती हरे कृष्ण राधा प्रभु जी, रानी हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, सत्य पढ़िए। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों के आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है 1 नंबर। एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस नहीं, का पहला 1 2 3 एक साथ दे दिया, उधर एक और दो बहुत एक साथ दे दिया। मैं बंगाली पढ़ रहा हूँ। श्री राधार प्रेमेर महिमा की रकम। नंबर 1, ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কি রকম। নাম্বার 2, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখী বা কি রকম। नंबर 3 एकदम अच्छा से दिया है हमको। ये देख रहे हैं हिंदी में 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अरे नहीं मत बोलिए, मन थोड़ा ज्वाइंट है प्रभु जी, ज्वाइंट कर दो। बोलना पड़ेगा। हाँ, एक साथ दे दिया गया है हिंदी। हाँ एक साथ। मैं फिर से बंगाली वाला पढ़ रहा हूँ। श्री राधार प्रेमेर महिमा की रकम। नंबर 1, ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কি রকম। নাম্বার 2, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখী বা কি রকম। এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপ চন্দ্র শচী গর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। क्लियर? यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, क्लियर है। कौन सा श्लोक आप पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में होगा जो? अभी 230 पढ़ रहे हैं। ये मंगला, ये सेम एज 1.6 230। ये मंगलाचरण का 6 नंबर श्लोक वाला है। ये नेक्स्ट वाला श्लोक ही है। हाँ प्रभु, ये नेक्स्ट वाला श्लोक ही है जो श्लोक आने वाला है। हाँ 231 अगला श्लोक। हाँ ज्योति माता जी बोलिए। प्रभु एक बार तीनों डिजायर बताइए ना प्रभु, फिर से एक बार रिपीट अच्छा, आप एक बार इंग्लिश वाला पढ़िए, इंग्लिश वाला अनुवाद पढ़िए 230 का। Sorry, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari. हाँ प्रभु, फिर से स्टार्ट करिए। desiring to understand the glory of Radharani's love, नंबर 1, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, माने ये मधुरिमा। नंबर 2, and the happiness she feels when she relishes the sweetness of his love. नंबर 3। ठीक है, एकदम क्लियर। अगला Okay, प्रभु। 231। এই সব সিদ্ধান্ত গুড়ো কহিতে না জুজায়। এই সব সিদ্ধান্ত গুড়ো কহিতে না জুঝায়। না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়। না কহিলে কেউ ইহার অন্ত নাহি পায়। অতএব কহি কিছু করিয়ানি গুড়ো। অতএব কই কিছু করিয়ানি গুড়ো। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়। হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। হৃদয় ধরয় যে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ। এই সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ। এই সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ। এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রেরও পল্লব। এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রেরও পল্লব। ভক্তগণ কোকিলেরও সর্বদা বল্লভ। ভক্তগণ কোকিলেরও সর্বদা বল্লভ।
তো এই যে ইন্টারনাল রিজন হ্যাঁ এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরু গুরু মানে গুইয়া সিক্রেট তাই सर्वसमीक्षा प्रकाश करा उचित नয় हम लोग थोड़ी बोलते हैं अगर कोई बोलेगा महाप्रभु अगर सोचिए महाकवि व्यक्ति को देखा अशोक प्रभु ठीक है अरे आप लोग का महाप्रभु कौन है तो हम लोग बोलेंगे कि साक्षात कृष्ण राधा कृष्ण का युगल अवतार है और ये एक्चुअली मेनली हरिनाम वितरण करने आए ऐसे बोलेंगे ना क्या हम लोग उनको बोलेंगे नया लोगों को एक्चुअली वो राधा का प्रेम आस्वादन करने आया और अपना जो माधुर्य है वो क्या था वो भी आस्वादन करने आया और अपना माधुर्य को श्रीमती राधा रानी आस्वादन करते हैं वो कैसा है वो भी चखने आया बोलेंगे क्या उनको ये सब नहीं ये सब इंटरनलिज्म तो नया लोगों को नहीं बोलेंगे सब भक्त लोग को मालूम है वही लिखा है ता सर्वसमीक्षा प्रकाश करा उचित नয় कविराज गोस्वामी बोले सबको बोलना नहीं चाहिए किंतु ता যদি प्रकाश ना करा হয় তাহলে কেউই তা বুঝতে পারবে না लेकिन बोलना चाहिए ना फिर भी कब बोलना चाहिए हमको लग रहा है कि कुछ दिन बाद बोलना चाहिए स्टार्टिंग में बोल देने से सब हजम कर पाएगा ये नहीं मालूम नहीं लेकिन कविराज गोस्वामी बोले लेकिन अगर वो सब नहीं बोले तो फिर कैसे समझ पाएंगे महाप्रभु का महिमा अगला श्लोक 232 का अनुवाद देखिए ता केवल तार सारमर्म प्रकाश करे आमी तार उल्लेख करब যাতে প্রেমিক ভক্ত তা বুঝতে পারে কিন্তু মূর্খরা তা বুঝতে পারবে না যে মানুষ তার হৃদয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ করেছেন তিনি এই সকল অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে आनंदमग्न হবে आनंदे हाँ कि हरि बोल महाप्रभु कितना सुंदर श्रीमती राधा रानी का जो भगवान का प्रिय सखी है उनका भाव आस्वादन करना उनका प्रेम आस्वादन करने सब आ रहे अवतरण हो रहे तो इससे भक्त लोग समझ पाएगा और आनंदित पाएगा এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে নব বিকশিত আম্র পল্লবের মতো আমের পল্লব সেগুলি কোকিলের মতো ভক্তদের কাছে सर्वदा अत्यंत प्रिय तो कोकिले मतलब एकदम जो हंस है उनको आम्रपल्लव देखने में कितना सुंदर है आम्र घट में भी आम्रपल्लव डालते हैं ना घटे डाले ना आम्रपल्लव आमेर पल्लव मुझे बहुत जरूरी है आमेर पल्लव मैंने एक तो ऐसे करके स्टेम रहता है जिसमें 4-5 ऐसे करके आमेर 5टा रहता है पल्लव पल्लव मैंने पाता घट में डालते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है तो ये इतना ऑस्पिशियस है ये भक्त लोग जो कोकिल जैसा है कौवा जैसा नहीं बाहर का लोग कौवा जैसा भक्त लोग क्या है लाइक कोकिल वो अप्रिशिएट करेगा ये सब सुनकर आनंद पाएगा और अप्रिशिएट भी करेगा अभक्त हरे कृष्णा प्रभु मेरा वो चल नहीं रहा हैंड रेज वाला थोड़ा ये वाला समझा दीजिए ना 234 वाला ऑल दीज कंक्लूजन्स आर लाइक न्यूली ग्रोन ट्विग्स ऑफ अ मैंगो ट्री इसका क्या मतलब हुआ प्रभु वही न्यूली ग्रोन लाइक आम्रपल्लव मत एकदम फ्रेश ऑस्पिशियस मैं उसीलिए बोला आम्रपल्लव आप देखिएगा यू नो व्हाट इज आम्रपल्लव ना नो प्रभु हिंदी भाषी ने यूज करो ना नहीं आम का हाँ प्रभु हम लोग करते हैं प्रभु हम लोग करते हैं हम लोग भी करते हैं आम का थोड़ा सा डंडी पीछे में लगा रहता है और उसमें 4-5 पत्ते एकदम छुड़ाया रहते हैं चित्राया रहते हैं उसी को पेट में घट भी रखता है आम्रपल्लव उसके ऊपर छोटा डाब रखता है और डाब में स्वास्तिक लाल वाला सिंदूर से बना देता है ना ऐसे कुछ करते हैं ना पंडित जी प्रत्येक अनुष्ठान में पूजा में लगता है हाँ तो ये बहुत ऑस्पिशियस है उसे और माना जाता है और भक्त लोग সেগুলি কোকিলের মতো ভক্তদের কাছে সর্বদা অত্যন্ত প্রিয় ओके हिरण्य गौरांग प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी तो ये चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम इसको प्रकाश किए इसलिए ये न्यूली ग्रोन बोल रहा है मालूम होता है फर्स्ट टाइम प्रकाश किए और माधुर्य आस्वादन तो आए ना करने आए थे तो ये उसका पहले नहीं था चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करने का पहले नहीं था इसलिए इसको न्यूली ग्रोन बोल के बोला जा रहा है ठीक है उसको अपना अपना सब इंटरप्रिटेशन क्योंकि इसमें कोई व्याख्या नहीं दिया है कि क्यों आम्रपल्लव से कंपेयर किया है क्यों कोकिल का जैसे नहीं दिया क्या है कि आम्रपल्लव कितना होता है कितना पत्ता होता है मालूम आम्रपल्लव में आइडियली 5 होता है 5 और 7 ये पंचतत्व को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि 5 एकदम और भक्त लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं पंचतत्व को ऐसे भी हो सकता है कुछ तो दिया नहीं व्याख्या 235 अभक्त उष्टेरो इथे ना হয় প্রবেশ অভক্ত উষ্টের ইথে না হয় প্রবেশ তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে, ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে, ইয়া বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে। অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার, অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার, নিঃসংকে কহিয়ে তার হোক চমৎকার। নিঃসংকে কহিয়ে তার হোক চমৎকার। অভক্ত উষ্ট্রের ইচ্ছে না হয় প্রকাশ, উষ্ট্রের মতো অভক্তেরা এই সমস্ত আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না। উষ্ট্রের মানে উষ্ট্র का क्या अर्थ है? উট উট। कैमल कैमल। অভক্তরা এই সমস্ত আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না। তাই আমার হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হচ্ছে। ऊंट इतना लंबा है वो नीचे से निकल जाएगा ऐसे कुछ क्या, ये सुन नहीं पाएगा, इतना कान तो इतना ऊपर है, अपने आप को हीरो समझता है एकदम ऐसे करके, एकदम है ना ऐसे कुछ ऊंट। और वो लेकिन ऐसा है कि वो आप कुछ भी करिए, वहां पर कोई अनुष्ठान होगा उससे उसको मतलब ही नहीं है, वो अपने मुंह चलाते रहेगा, अपने मन में चलते रहता है। तो अभक्त लोग ये सब कुछ हृदयंगम नहीं कर पाएगा, महाप्रभु का इंटरनल रीजन। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऊंट जो है ना वो चबा हुआ को चबाता रहता है, उसी का मतलब अपना ही खून को आस्वादन करते रहता है। तो वो भौतिक भक्ति में जो भौतिक जगत में जो लोग फंसे रहते हैं उनको इंडिकेट कर। ओके वेरी नाइस। और एनी अदर? प्रभु बोलिए। कैमल्स लोग को थॉर्न्स चबाते हैं ना प्रभु, तो उनका माउथ ब्लीड करता है, तो उन लोग अपनी ब्लीडिंग को, अपनी ब्लड को चूसते रहते हैं एंड दे फील स्वीट। सो मटेरियल पीपल आर आल्सो लाइक कैमल, दे टेस्ट दैट मटेरियल रसा एंड दे कैन नॉट एंटर इन दीस रसास। ये पिछले ये विनय गोविंद प्रभु का क्लास किए थे ना, तो उन्होंने ये बताया था। और एनी अदर इंटरप्रिटेशन ऊंट के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? ओके, উষ্টের মতো অভক্তরা এই সমস্ত আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না। প্রবেশ করতে পারে না, उसमें घुस नहीं पाता है, उसको समझ नहीं पाता कि महाप्रभु का इंटरनल रीजन। তাই আমার হৃদয় বিশেষ आनंद হচ্ছে। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रवेश करता उल्टा पुल्टा बोलता है ना, जो बाहर का आदमी है ये महाप्रभु का इंटरनल रीजन समझ कर अरे ये सब क्या ढोंगी बाबा है कुछ ऐसे बोलता, तो इसीलिए अच्छा है कि उन लोग समझ नहीं पाते। তাদের ভয় আমি বলতে চাই না, তাদের ভয় আমি বলতে চাই না, কিন্তু তারা যদি বুঝতে না পারে তাহলে তার থেকে অধিক সুখের বিষয় ত্রিভুবনে আর কি আছে? हरी बोल, कितना स्वीट है ना। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं अगर हम लोग उनके डर से हम लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं पाए तो बोलने में क्या हर्ज है। অতএব ভক্তদের প্রণতি নিবেদন করে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি নিঃসংকোচে তা ব্যক্ত করব और डिटेल में बताऊंगा मैं अभी। यस श्रीवास प्रभु। তো বলছি আলোচনায় প্রবেশ করতে পারে না, তাই আমার হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হচ্ছে, এটা কি কারণ? হ্যাঁ, কারণ কি অভক্তরা একদম যারা নাস্তিকেরা এসব শুনে উল্টোপাল্টা বলবে, তাদের মধ্যে কোনো শ্রদ্ধা নেই মহাপ্রভুর প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে এরা শুনতে পায়নি, বুঝতে পায়নি। কেন? কারণ কি বুঝে অপরাধগুলি করতো, ঠিক না, অপপ্রচার করতো, অপরাধ করতো। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী খুশি হয়েছে, ভালো হয়েছে এসব নাস্তিকেরা বুঝতে পারেনি, ভালো হয়েছে। কৃষ্ণের বিচারও এক আছয় অন্তরে, কৃষ্ণের বিচারে এক আছয় অন্তরে, পূর্ণানন্দ পূর্ণ স্বরূপ পূর্ণর স্বরূপ কহে মোরে, পূর্ণানন্দ পূর্ণ রসরূপ কহে মোরে। पूर्ण रसरूप, हाँ करेक्ट, कहे मोरे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु समझ जाएंगे तो फिर अपराध कैसे करेंगे प्रभु? नहीं समझ रहे तो ही अपराध करें, समझ जाएंगे तो अपराध कैसे करेंगे फिर प्रभु? समझ जाने से तो वो फिर नास्तिक नहीं रहेगा, तो भक्त हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अपराध तो नहीं होगा समझ जाएंगे तो। लेकिन नहीं, इसको इस तरह से डायरेक्टली मत देखिए, उल्टा वे से देखिए। जो गलत व्यक्ति है वो अगर इसको समझ के, हाँ इंटरनल रीजन, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को इतना साल ना ये तीनों में अंतर कभी समझ ही नहीं आया। अभी मुझे समझ में आ रहा है क्यों समझ नहीं आया क्योंकि कविराज गोस्वामी चाहते थे हम जैसे व्यक्ति को नहीं समझ में। पहली बार हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम हमेशा सोचते हैं तीनों रीजन एकदम एक जैसा लगता है। हाँ, बहुत बार ये श्लोक पढ़ा, लेकिन ये तीनों रीजन का अलग अलग देयर इज डिफरेंस, प्रॉपर डिफरेंस है तीनों में। ये पहले बार हमको आस्वादन हो रहा है। तो जो भी हो, तो कविराज गोस्वामी ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव व्यक्ति है, ठीक है, ऊट जैसा है व्हाटएवर, तो वो इस सब से दूर रहे तो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। वेद गामिनी राधा रानी माता जी।
प्रभु ये श्लोका में जो तीनों रीजन दिया है ना, वो थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिए ना। আচ্ছা, ঠিক আছে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তরে বিবেচনা করেন, সকলেই বলে যে আমি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ রসের মূর্তি বিগ্রহ। ঠিক আছে, ভগবান সোচ রাখলে আপনি আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন, আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন, আমাকে আনন্দ দিবে হইছে কোনজন, আমাকে আনন্দ দিবে হইছে কোনজন, আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জন আল্লাহ দিতে পারে মোর মন, সেই জন্য আল্লাহ দিতে পারে মোর মন। नहीं बोलो ना कविराज दोस्तों जी, अभी हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, अभी डिटेल में बता रहे हैं इंटरनल रीजन क्यों भगवान महाप्रभु रूप में अवतरण हुए। এক সময় কৃষ্ণ তার অন্তরে বিবেচনা করলেন, সকলেই বলে যে আমি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ রসের মূর্তি বিগ্রহ, সমস্ত জগৎ আমার থেকে আনন্দ লাভ করে, এমন কি আছে, ऐसा क्या है मेरे में जो আমাকে আনন্দ দান করতে পারে, এমন কেউ আছে, সরি ऐसा कोई है क्या जो मुझे आनंद दे सकता है, मैं तो समस्त जगत को आनंद दे सकता हूँ, देता हूँ, तब बोलता रहता है ऐसे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मुझे आनंद दे सकता है, আমার থেকে যার মহিমা শত শত গুণ অধিক, সেই কেবল আমার মনকে আনন্দিত করতে পারে। इसलिए तो भगवान ने राधा रानी को अपने शरीर से बनाया, क्यों? भगवान खुद भी आनंद लेना चाहते हैं। अभी खुद तो आनंद ऐसे व्यक्ति से लेगा, उनसे थोड़ा ज्यादा होगा ना, फिर तो आनंद दे पाएगा ना। আমি হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব, আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব, একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব, একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব, কোটি কাম যিনি রূপ যদ্যপি আমার, কোটি কাম যিনি রূপ যদ্যপি আমার, অসমর্থ মাধুর্য সাম্য নাহি যার, অসমর্থ মাধুর্য সাম্য নাহি যার, মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন, মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন, রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন, राधार दर्शने मोर जुराय नयन। भगवान सोच रहे थे कि मेरे को अगर कोई आनंद देना है तो मेरे से कोटि कोटि गुण ज्यादा उनमें गुण होना चाहिए। এই জগতে আমার থেকে অধিক গুণ সম্পন্ন কাউকে পাওয়া অসম্ভব। कोई है क्या भगवान से ज्यादा गुण? नहीं है। केवल राधा रानीर মধ্যেই তা রয়েছে বলে আমি অনুভব করি। सब इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ध्यान दीजिए। ओके, सब भगवान का डायरेक्ट अपना डायलॉग है। যদিও আমার সৌন্দর্য কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যের পরাভূত করে, যদিও আমার এই সৌন্দর্যের সমান অথবা তার থেকে অধিক সৌন্দর্য সমন্বিত আর কেউ নেই, এবং যদিও আমার এই সৌন্দর্যের ত্রিভুবনে আনন্দ বিধান করে, তবু রাধা রানীকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। अरे मैं सबको आनंद देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर श्रीमती राधा रानी को देखकर আমার চোখ জুড়িয়ে, मैं सर्व आकर्षण हूँ, लेकिन मेरे को कौन आकर्षण करता है? श्रीमती राधा रानी। राधे 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 राधे। मोर बंशी गीते আকর্ষয় ত্রিভুবন, মোর বংশী গীতে আকর্ষয় ত্রিভুবন, রাধার বচনে হরে আমারও শ্রবণ, রাধার বচনে হরে আমারও শ্রবণ, যদ্যপি আমারও গন্ধে জগত সুগন্ধ, যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ, মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ, মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ, যদ্যপি আমার রসে জগত সরস, যদ্যপি আমার রসে জগত সরস, রাধার অধর রস আমা করে বশ, রাধার অধর রস আমা করে বশ, যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিন্দু শীতল, যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিন্দু শীতল, রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল, রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল। আমার বংশীগীত ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু শ্রীমতী রাধা রানীর মধুর বচন শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় মোহিত হয়। যদিও আমার অঙ্গগন্ধ সমস্ত জগৎকে সুরভিত করে, তবুও রাধা রানীর শ্রী অঙ্গগন্ধ আমার চিত্ত এবং হৃদয়কে হরণ করে। যদিও আমার রসে সমস্ত জগৎ সরস হয়েছে, তবুও শ্রীমতী রাধা রানীর অধরের সুধা আমাকে বশীভূত করেছে। যদিও আমার স্পর্শ কোটি চন্দ্রের থেকেও শীতল, তবুও শ্রীমতী রাধিকার স্পর্শ আমাকে সুশীতল করে।
এই মতো জগতেরও সুখে আমি হেতু, এই মতো জগতেরও সুখে আমি হেতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু, রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু, এই মতো অনুভব আমার প্রতি, এই মতো অনুভব আমার প্রতি, বিচারি দেখিয়া যদি সব বিপরীত, বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত, রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন, রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন, আমার দর্শনে রাধা সুখে অগয়ন, আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান, পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন, পরস্পর বেণুগীতে হরয় চেতন, মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন, মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন। এইভাবে যদিও আমি হচ্ছি সমস্ত জগতের সুখের কারণ 248 দেখে, তবুও শ্রী রাধিকার রূপ এবং গুণ আমার জীবন স্বরূপ। ভগবান সোচ रहे सब प्लानिंग चल रहा है। এইভাবে শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনুভব করতে পারলেও যদি আমি বিচার করে দেখি তখন সব বিপরীত বলে প্রতিভাত হয়। মানে मैं अगर सोचता हूँ हम श्रीमती राधा रानी को कितना प्रेम करते हैं, लेकिन लगने से हमको उल्टा लगता है। क्यों? अरे मेरे से तो कोटि कोटि गुण श्रीमती राधा रानी मुझसे प्रेम करते हैं। श्रीमती राधा रानी के दर्शन করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু আমাকে দেখে শ্রীমती राधा रानी अधिक सुख अनुभव करे। आएगा ना मेरा माधुर्य देखकर श्रीमती राधा रानी कोटि कोटि ज्यादा उनको आस्वादन होता है। বাসে বাসে ঘর্ষণের ফলে যে বংশীর ধ্বনির মতো শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনে শ্রীমতী রাধারানী চেতনা হারায়, কারণ সে মনে করে সেটি যেন আমার বংশীর ধ্বনি। আর আমি বলে ভুল করে সে तमाल वृक्ष के आलिंगन करे। बास बास में घर्षण होता है और उसको आलिंगन करते हैं श्रीमती राधारानी, क्योंकि सोचता है कि भगवान का वंशी है। माने जिसको एक वर्ड है ना कृष्णमयी, है ना कृष्णमयी, माने एकदम कृष्ण में एकदम लीन हो गया श्रीमती राधारानी। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले, কৃষ্ণ সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে, अनुकूल बाते यदि पाए मोर गंध, অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ, उड़िया पड़िते चाहे प्रेमे है अंध। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ। एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी श्रीमती राधा रानी का प्रेम के लिए ऐसे किया कि कोई बांस देगा तो आलिंगन कर लिया, बांस बांस से घर्षण में जो आवाज होता है, बैम्बू बैम्बू घर्षण में, वो सब नहीं। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जितना प्रेम करते हैं उससे कोटि कोटि गुण श्रीमती राधा रानी भगवान से प्रेम करते हैं। यहाँ अनुवाद में देखिए, श्रीमती राधा रानी मने करे कृष्णेर आलिंगन लाभ करे আমার জন্ম সার্থক হলো। এইভাবে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সে কৃষ্ণ সুখে মগ্ন থাকে। অনুকূল বায়ু যখন আমার অঙ্গগন্ধ বহন করে তার কাছে নিয়ে যায়, তখন সে প্রেমে অন্ধ হয়ে সেই বায়ুতে উড়ে যেতে চায়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরে, রহিল মদন ভরিয়া হরে হরে, বদন হরে